Yes, dear students, good morning and welcome back to discuss again about the economics and with a new topic. Okay, dear students, so let's start for the today. Yes, dear student, we have already discussed content of the chapter, and chapter second we are studying center problems and of economy. Learning objectives already we have completed. Then after we have completed all the three problems, what to produce, how to produce, and for whom to produce, we have already completed that. Solution of center problems in different economies, in market, in center planned, and in mixed economy, we have already discussed about that. Okay, so then after we have started that production possibility curve. So what is production possibility curve? Production possibility curve means it is a combination of two goods. It is a combination of production of two goods which can be produced with given resources and technology. जिन्हें हम given resource and technology के साथ produce कर सकते हैं. Okay, dear students. So in this we have completed meaning, and there is a table. This is the diagram, and we have already completed the assumptions of PPC. So we have three assumptions of PPC. First, no change in resources. Second, no change in technology. Third, resources are fully and efficiently utilized. We have already completed this also. Yes, beta. Yesterday we have discussed about the attainable and unattainable combination of output. Attainable means these are those combination of production of two goods which can be attained with the given resource and technology. जिनका प्रोडक्शन हम कर सकते हैं with given resource and technology, और जिनका प्रोडक्शन हम given resource and technology में नहीं कर सकते, it means that is unattainable, non-attainable. Clear, dear students? So we have already completed. With the help of diagram we complete that part also, that all the points on PPC like A, B, P, C and D, all are the point on PPC are showing the full utilization of resources, attainable and full utilization of resources, and any point inside the PPC showing that these are the attainable but underutilization of resources, and any point outside the PPC, this one is PPC line, इसके बाहर जो भी point होगा कहीं पर भी है, this is a non-attainable or unattainable point, because with given resource and technology we can't produce the combinations. Okay, dear students, we have completed this one also. So now our today's topic is, it is also related with PPC. So here is the topic, that is two basic properties of PPC. Yes, dear students, अब देखो मैं आपको दो बातें बताने वाली हूँ. प्लीज़ क्लियर both the things in your mind. First is, what is assumption? When we are going to study any law or any definition, सो वी मस्ट एज्यूम समथिंग. अगर हम कोई लॉ पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो हमें कुछ चीज़ें पहले से माननी पड़ेगी. दिस इज़ द बेस फॉर द इकोनॉमिक्स, कि हाँ अगर ये कंडीशन होगी तो ऐसा ही होगा. दीज आर द एजम्पशंस, और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एजम्पशंस. तो अगर मैं आपसे पूछूँ क्या है एजम्पशंस, सो हाउ मैनी ऑफ यू आंसर फॉर दैट? मे बी 4 or 5 स्टूडेंट्स विल आंसर दैट. मैम देर आर द 3 एजम्पशंस. फर्स्ट, नो चेंज इन रिसोर्सेज. सेकेंड, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी. थर्ड, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज. अगर ऐसा होता है तो ये लॉ वर्क करेगा, पीपीसी वर्क करेगा. ओके, सो नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज मीन्स दैट द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफ इज प्रॉपर्टी. कि जो डायग्राम बनने वाला है वो अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, स्ट्रेट होगा, कॉन्केव होगा, कॉन्वेक्स होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. इट मीन्स व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ पीपीसी. सो वी हैव डिस्कस अबाउट द पीपीसी के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं. ओके, यस्टरडे वी फॉर्म द पीपीसी कर्व. सो हियर इज द पीपीसी कर्व. लुक एट हियर, दिस इज एक्स एक्सिस. वी शो द प्रोडक्शन ऑफ दैट कॉमोडिटी विच इज गोइंग टू इंक्रीज. जिसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसे हमें एक्स एक्सिस पर शो करना है. एंड ऑन द वाई एक्सिस वी हैव टू शो द कॉमोडिटी विच इज गोइंग, द प्रोडक्शन ऑफ द कॉमोडिटी इज डिक्रीजिंग. जिसका प्रोडक्शन कम हो रहा है उसे हमें वाई एक्सिस पर शो करना है. एंड दिस लाइन इज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. Okay, dear student, so what is the shape of this line? The shape of this line is downward sloping. ये कैसे स्लोप है बेटा? दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ओके, एंड आपने 10th में साइंस में भी पढ़ा है व्हाट इज कॉनकेव, व्हाट इज कॉन्वेक्स. तो ये कैसा है? दिस इज द कॉनकेव टू द ओरिजिन. दिस इज ओरिजिन पॉइंट. this is the origin point, okay, where both the lines are meet. This is the origin point. So it is a concave to the origin. ये convex नहीं है, this is concave.
concave to the origin. Clear? Two things are clear. It is downward sloping and concave to the origin. But why it is downward sloping and it is concave to the origin? So now we will discuss today about this. Yes, the first property is production possibility curve slopes downward. Production possibility curve slopes downward. ये डाउनवर्ड होता है. अब डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है रिसोर्स और टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होंगे. सो हाउ कैन इट पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स इंक्रीज, कि दोनों का प्रोडक्शन एक साथ बढ़े? इट इज़ नॉट पॉसिबल. इफ प्रोडक्शन ऑफ वन कॉमोडिटी इंक्रीज तो देर मस्ट बी डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर कॉमोडिटी. अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का प्रोडक्शन अल्टीमेटली हमें कम करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव नो ऑप्शन. अभी मैंने आपको एग्जांपल लेकर बताया था कि सपोज आई हैव अ पीस ऑफ लैंड और आई एम जस्ट प्रोड्यूसिंग वीट एंड राइस ऑन 50% एरिया, बट बिकॉज ऑफ द फेवरेबल मार्केट कंडीशन फॉर द राइस की मार्केट कंडीशन अच्छी है, उसके प्राइस अच्छे हैं. सो नाउ आई एम थिंकिंग टू प्रोड्यूस मोर राइस. अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़्यादा राइस उगाऊँ, तो हाउ इट विल बी पॉसिबल? बेटा ये कैसे पॉसिबल होगा? इट कैन बी पॉसिबल बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ वीट. अगर मैं वीट का प्रोडक्शन कम कर दूँ, मैं वीट का प्रोडक्शन कम करूँ तो राइस का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, बिकॉज मेरे पास ना तो लैंड एरिया, ना तो रिसोर्स बढ़ाने, ना टेक्नोलॉजी चेंज करनी है. सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा. ओके, क्लियर? यस. सो लुक एट हियर. By the diagram you can show, suppose we are producing 20 units of rice and 30 units of wheat. Now I am thinking to produce more rice. अब मुझे राइस ज़्यादा उगाने हैं, मुझे 30 यूनिट्स उगाने हैं. तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे इसे 20 करना पड़ेगा. ओके, सो देखो गेन किस में हो रहा है? गेन हो रहा है राइस में. और लॉस किस में हो रहा है? लॉस हो रहा है वीट में. सो अब इसकी स्लोप कैसी बनेगी बेटा? द स्लोप इज़ कॉनकेव. इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग. अपवर्ड स्लोप कभी भी इकोनॉमिक्स में किसी भी ग्राफ में तब होगी व्हेन बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. अगर सपोज ये होता कि वीट और राइस दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ये गिवन है, अब राइस भी इंक्रीज हो गए और वीट भी और इंक्रीज हो गई, या दोनों ही साथ डिक्रीज हो रहे हैं, तो डायरेक्शन कैसी होती बेटा? अपवर्ड होती. बट हियर द डायरेक्शन इज डाउनवर्ड. डाउनवर्ड के पीछे रीजन क्या है? कि प्रोडक्शन ऑफ वन कॉमोडिटी कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर. एक का प्रोडक्शन तभी बढ़ाया जा सकता है जब दूसरे का प्रोडक्शन कम किया जा सके. ओके, सो दैट्स वाई पीपीसी इज स्लोप्स डाउनवर्ड. सो लुक एट हियर. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दिस इज आर लेफ्ट साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड. ओके, ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जा रहा है. आप अपनी हैंड से खुद देखना, लेफ्ट से कहाँ जा रहे हैं? हम राइट हैंड में जा रहे हैं. सो slope downward from left to right. It is because in a situation of full utilization, efficient utilization of resources, production of one good can be possible. एक गुड का प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है when we are decreasing the production of other. अगर हम दूसरे का प्रोडक्शन कम करें. सो दिस इज़ द रीज़न. एक का प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब दूसरे का प्रोडक्शन कम करेंगे, अदरवाइज वी हैव नो ऑप्शन. सो दैट्स वाई पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड. ओके डियर स्टूडेंट्स. ओके, and second beta, why PPC is concave to the origin? Why PPC is concave to the origin? This is the second question. Okay, or by answering the question we can solve the both sub questions. So here is the only single reason, only a one line answer. PPC always concave to the origin because of increasing MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. कि अगर हमें एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, एडिशनल यूनिट्स बढ़ानी है, तो वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड कॉमोडिटी मोर एंड मोर. तो हमें दूसरी कॉमोडिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा. दैट्स वाई इट इज़ कॉनकेव टू द ओरिजिन. सिर्फ एक लाइन का आपको आंसर लिखना है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है कि वाई इट इज़ concave to the origin. PPC is concave to the origin. So there is the reason that PPC is concave to the origin because of increasing MRT, marginal rate of transformation. कि अगर एक का प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का हमें मोर एंड मोर यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, तब जाकर ये वर्क करेगा. ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज़ फॉर द टुडे. एंड बेटा डू योर वर्क ऑन रेगुलर बेसिस. So stay safe, stay at home. Go